discussion, but before that, let me cap the previous discussion. We have started a new topic called time value of money on the first day. And we defined that what do we mean by time value of money? And we learned there that interest is the main reason due to which there is a time value of money. And in short, we studied two types of models. We studied the future value. If we want to calculate the future value of any given present value at a given rate of interest, so how we can find that out. And secondly, if we want to know what is the present value of any given future value, so how we do it. And if I is missing, if n is missing, we can find it out, right? So this is the previous discussion. अगर आपका कोई सवाल है पिछली discussion में से तो वो आप पूछ सकते हैं. Then I move forward. And today I'll try to complete my discussion on time value of money so that इस weekend पे आप कुछ numericals भी कर सकें, right? So I'll give you some numericals as an assignment, but I'll let you know that how to solve it. Okay, so don't worry about that. So today is 16th of March. So now in the time value of money, so far we have studied how to calculate time value of money, time value of a single amount of money, right? Single amount of cash, right? Today we learn another thing. And let me tell you, we studied that in a single amount of cash, there are two formulas that you need to remember. One is the future value at time n is equal to present value multiplied by 1 plus compound rate of interest raised to the power n. And second, present value at time 0 is equal to the future value at time n multiplied by 1 divided by 1 plus rate of compound. We call it rate of discount in case of present value raised to the power n. Now, second topic that you need to understand is time value of a series of cash flow. Series of cash flows, right? Now, this is a situation comparing, if I compare the situation with the previously designed situation, we design a timeline something like this, that there is a present value which is known, and we find out its future value. And in second case, there is some future value which is known, and we try to find out its present value at time 0. Okay, this is time 0, this is time n. So these are the two cases. But in series of cash flow, what happens? There is no single cash flow, there is a series of cash flow, right? For example, let's take an example that I keep on depositing some amount of my saving in a bank account every year. Let's say I started depositing 150 rupees every year in a bank account in the first year, right? At the end of the first year, I deposited 150 rupees in a bank account. At the end of second year, I again deposited 150 rupees in a bank account. At the end of third year, I deposited again 150 rupees in a bank account. At the end of fourth year, I again deposited 150 rupees in a bank account. And at the end of fifth year, I again deposited 150 rupees in my bank account. You understand the situation? Now, this is not a single cash flow. This is series of cash flows, right? This is a series of cash flows. Now, question is, if bank pays 3% compound annual rate of interest, that is 0.03 every year,
When I deposited the first amount of money, bank bank charged me or added a 3% compounded in the first year, then in the second year, in the third year, in the fourth year, and the fifth year. So my question is, how much money it would become at the end of the time period, right? What is this amount at this time period? When I'll deposit the last 150, how much money it would become? ठीक है, प्रॉब्लम समझ आई। यहां पे ऐसा नहीं था, यहां पे एक ही कैश थी, या टाइम जीरो पे होती थी तो हम उस कैश का फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते थे यहाँ पे, या फ्यूचर वैल्यू होती थी तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते थे कि वो इनिशियल में अमाउंट कितनी थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर साल के आखिर में एक कैश फ्लो एग्जिस्ट करती है और उस पर हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगता है। तो क्वेश्चन ये कि वो मिलके कैसे कितनी अमाउंट बन जाएगी, यानी अगर आप हर साल 150 रुपीज बैंक में जमा कराते रहें और 3% सालाना इंटरेस्ट हो तो वो अमाउंट कितनी बन जाती है, राइट? So we call that series of cash flow annuity, right? The word we use for this series of cash flow is called an annuity. What is an annuity? Annuity is a series of cash flow. Annuity is a series of cash flows which fulfills the following conditions. कोई भी सीरीज ऑफ कैश फ्लो जो ये कंडीशंस पूरी करे उसको हम बोलेंगे कि वो एनवीटी है। फॉलोइंग कंडीशंस, राइट? नाउ नंबर 1 कंडीशन, द कैश अमाउंट must be the same for each year. Same for each year. जैसे यहां पे आप देख रहे हैं हर साल 150 ही है, तो ये पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। पहली कंडीशन क्या है कि ये जो कैश फ्लो है ये हर साल इट शुड रिमेन द सेम, ये डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, यानी ये ना हो कि कभी 150, कभी 100, कभी 250, कभी 200, इस तरह नहीं। दिस शुड रिमेन द सेम। नंबर 2, the cash amount or cash flow must occur at the end of the year. जैसे फर्स्ट ईयर की कैश फ्लो फर्स्ट ईयर एंड पे, यहां से टाइम शुरू होता है, ये पहला साल कंप्लीट होता है, तो फर्स्ट ईयर एंड के ऊपर ये कैश एग्जिस्ट करती है। सेकेंड ईयर कैश फ्लो सेकेंड ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती है। थर्ड ईयर कैश फ्लो थर्ड ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती है। फोर्थ ईयर एंड पे। तो ये 5 साल हैं और 5 ही कैश फ्लोज हैं, लेकिन ये हर साल के एंड पे एग्जिस्ट करती है, बिगिनिंग में नहीं आती। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, द कैश अमाउंट मस्ट बी द सेम फॉर ईच ईयर. Number 2, the cash amount must occur at the end of each year. And last condition is that the time must be finite. Right? Time finite होना चाहिए, infinite time नहीं होना चाहिए. There should not be infinite time. There should be a finite time. यानी ये ना हो कि ये forever हो, जैसे पेंशन होती है ना, forever के लिए होती है, जब तक आप जरा अनसीन टाइम पीरियड के लिए आप जिंदा रहेंगे, कोई पहले से नहीं कह सकता। तो ये फाइनाइट होता है। सो टाइम पीरियड मस्ट बी फाइनाइट, इट शुड नॉट बी इन्फिनिट, इन्फिनिटली एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो कोई भी कैश सीरीज, कोई भी सीरीज ऑफ कैश फ्लो जो ये 3 कंडीशंस पूरी कर दे, उस सीरीज ऑफ कैश फ्लो को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एन एन्युटी, राइट? Am I clear? Yes, sir. ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आप उसकी जरा सबसे पहले क्या करेंगे? टाइमलाइन बनाएंगे। ये मैंने आपको पहले दिन बताया। यू विल रीड अ क्वेश्चन एंड यू विल ड्रॉ अ टाइमलाइन. When you will draw a timeline, then see, is it an annuity or not? And most of the times you will see an annuity, right? We do the question of annuity only in this course. ये ध्यान में रखिएगा, ज्यादातर क्योंकि होंगे एनविटीज, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि most of the times you will see it, but you need to check it. So you will draw a diagram of a problem and then you will see whether it's an annuity or not. ठीक है, तो जो भी सीरीज ऑफ कैश फ्लो, ये सिंगल कैश का क्वेश्चन नहीं है, ये सीरीज ऑफ कैश फ्लो का क्वेश्चन है, और
हमने देखना है कि क्या ये 3 कंडीशंस पूरी करता है। कौन कौन सी 3 कंडीशंस? नंबर 1 कि द कैश इज सेम, ये 150 150 151 ये सेम होनी चाहिए, सेम है, बिल्कुल ठीक है। कैश मस्ट अकर एट द एंड ऑफ द ईयर, 5 साल है तो 5 सालों के एंड पे आ रही है, तो यस इट इज एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एंड टाइम इज फाइनाइट, टाइम डिफाइंड है, फाइनाइट है 5 साल, इनफिनिट टाइम नहीं है। ओके, so if these 3 conditions are fulfilled, we call it an annuity. And this question is to find the future value of annuity, because हम time 5 के end पे जानना चाह रहे हैं, तो we want to know what is the future value of annuity, right? We want to know the future value of annuity. ठीक है? And you need to remember now my third equation. हमने 2 पहले पढ़ ली हैं. This is our first equation, right? Equation number 1, equation number 2. Now I'm telling you third equation, okay? So that is known as future value of annuity at time n, okay? So that is equal to R. R is this amount. This is R. 150 is your R. Okay, recurring value. We call it recurring value. In some books, PMT is mentioned, payment, PMT. Symbols may vary, but you need to understand, I'm talking about R. So R represents 150 here. Recurring value, जो बार बार occur करने वाली value, उसको हम R value बोलेंगे. R value divided by that rate of interest, which is 3%, right? And then multiply by 1 plus your rate of interest raised to the power n minus 1. That's all. Okay? So this is the third formula that you need to remember. This is a third formula which will give you the future value of annuity, right? This is a third formula. Okay? Am I clear? So if I tell you how to put values in it, so in our example, R is equal to 150, I is equal to 0.03, N is equal to 5, और क्या रह गया? R, I, N, 3 चीजें चाहिए इसके लिए आपको. Just you need to know 3 things. ठीक है? So you just put these 3 values in the formula, like 150. इसको next कर लेते हैं. Let me solve it here. So future value of annuity at time n is equal to recurring value divided by the interest rate into 1 plus rate of interest to the power n minus 1. And here recurring value is 150 divided by interest rate is 0.03. And then in the bracket, I have 1 plus 0.03 raised to the power how many years? 5 years. And then minus 1. Okay, so let's solve it. So 150 divided by 0.03 is how much? This is 5,000. Multiply by 1 plus 0.03 is 1.03 raised to the power how much? 5. That is equal to 1.15927 minus 1. That means 5,000 multiplied by, this is 0.15927. Now if you multiply 5,000 with it, how much it would become? Sir, 96.35. So that is 796.370. ठीक है? That is your answer. So combined all these figures together, ठीक है? Your amount would become 796.370.
Is it clear or not? ठीक है? Yes, sir, clear. Let's say you need to collect 500,000 rupees within whatever, seven years. I'm just taking arbitrary figures, right? You can suggest any year, any number of years. I don't mind that. So you need to collect 500,000 within 7 years. Your local bank pays, let's say anything, your local bank pays anything, 4.5% per annum interest on account deposit, right? आप account deposit कराएंगे तो 4.5% per annum बैंक आपको पे करेगा, and you need that 500,000 in 7 years, right? So question is how much money at the end of each year, at the end of each year, you must deposit. आपको इन 7 सालों में हर साल के आखिर में कितने पैसे बैंक में जमा कराने चाहिए कि 7 साल बाद वो रकम 5 लाख बन जाए 4.5% के हिसाब से? इंटरेस्टिंग, ठीक है? यस सर। सो अब हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले याद रखें, फाइनेंस में मैं आपको एक आदत डाल रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ें और टाइमलाइन बनाएं इसकी. नाउ आई एम मेकिंग अ टाइमलाइन फॉर 7 years. So this is my 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 year, right? These are my 7 years. I want 500,000 here. I need 500,000 here. मेरा इंटरेस्ट रेट इन 7 सालों में तकरीबन 4.5% है, दैट इज 0.045. ओके, मुझे जानना ये कि यहां पे वो आर कितना होगा, व्हाट दैट आर शुड बी. ये रकम कितनी होगी कि जब मैं ये जमा करता जाऊं सारा कुछ, तो ये फ्यूचर वैल्यू जो है ना वो एनवीटी की वो 5 लाख बन जाए. इज इट क्लियर? तो क्लियरली इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सिंगल अमाउंट ऑफ कैश, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एनवीटी, क्योंकि ये हर साल के आखिर में कोई रकम जमा करानी है मुझे 5 लाख बनाने के लिए, जिसपे ये इंटरेस्ट भी लग रहा होगा, और वो इंटरेस्ट मिला के 5 लाख बनेगी, तो वो रकम कितनी होगी? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज. ठीक है? सो नाउ लेट मी सॉल्व इट हियर. इट मींस अगेन माय फार्मूला इज सेम. Future value of NVT is equal to the recurring value divided by the interest rate into 1 plus interest rate raised to the power n minus 1. ठीक है? What I know the future value of NVT 5 लाख. इस केस में तो मैंने ये निकाली है ना फ्यूचर वैल्यू. इस केस में मुझे फ्यूचर वैल्यू पता है कि मुझे 5 लाख की रकम जमा करनी है यहां पे, ये मुझे पता है. I know the future value. But I don't know that recurring value. I don't know what is R. So I leave that R. I'm leaving that R. So R divided by how much interest rate is 0.045 multiplied by 1 plus 0.045 raised to the power in how many years? In 7 years minus 1. ठीक है ना? बात समझ आइए? मजेदार काम है ना. अभी आपको बताता हूँ किस्तें कैसे बनाते हैं कर्जे की ना, सारा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मॉडल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. अभी हम बता रहे हैं कि अगर आप एक रकम जमा कराते जाएं तो वो आपके 5 लाख बन जाएंगे. बताएं वो रकम कितनी है, या दूसरे लफ्जों में आपको 5 लाख चाहिए तो कितनी रकम जमा कराऊं हर साल के 7 साल में वो 5 लाख बन जाए. सो जस्ट नीड टू फाइंड आउट दैट आर. सो टू फाइंड आउट दैट आर आई कैन मल्टीप्लाई दिस विद 500,000. आई कैन मल्टीप्लाई दिस 0.045 दिस 500,000. ठीक है ना? तो मैं इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बन जाता है? लेट मी टेक आउट माय कैलकुलेटर. दैट इज 500,000. 22500. हाँ, 22. So that is basically 22500 is equal to R multiplied by, now this 1 plus 0.045 raised to the power 7 is 1.045 to the power 7 is equal to 1.3608
-1, ठीक है, कैलकुलेशन समझ आ रही है ना? इस ब्रैकेट का आंसर ये आ गया, -1 वैसे ही आ गया, ये 0.045 उधर जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो दैट सिंपली 22,500 is equal to R multiplied by 0.3608. Okay, so now this is R and I can divide it on the other side, right? I can divide it on the other side of the picture. So that is 22,500 divided by 0.3608 equals to R. What R equals to? 621. So that is 22,500 divided by the answer. So this is almost 62,000. This is almost 62,350 rupees. Yes. Right? फ्रैक्शन में क्या बना था ये? सॉरी, मैं 500 divided by 0.3608. So that is 62,300 and right. So this is after the decimal. So this is my answer. I need this much amount at the end of each of the 7 years. तो ये मैं 62,350.73 हर साल जमा कराऊंगा यहाँ, और 7 साल तक जमा कराऊंगा तो ये रकम 500,000 बन जाएगी। ठीक है जी, मेरे बात? Yes, sir. आप देखो ना, इफ यू मल्टीप्लाई दिस 62,350 विद 7, क्योंकि ये 7 साल तक जमा कराई है, तो अगर आप इसको 7 से ज़रब दें तो ये कितनी रकम बनेगी? तो इट्स ऑलमोस्ट 436,000, यानी 4,36,000 रुपए आपके लगेंगे, लेकिन ये बन जाएंगे 5 लाख पूरे। ठीक है ना? लॉजिकल? जी सर। लॉजिकल है ना? 62,350 आप 7 सालों तक जमा कराएं तो आपने कितने पैसे जमा कराए? आपने तकरीबन 4,36,455 रुपए जमा कराए हैं बैंक में, और वो बन कितने गए हैं 7 सालों में? वो 5 लाख पूरा बन गया। बिकॉज ऑफ व्हाट? रिटर्न इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता रहा है ना इन पैसों के ऊपर। तो दैट बिकम्स नाउ 500,000। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। इसी तरीके से आई कैन गिव यू सेवरल एग्जांपल्स ऑफ दैट, लाइक फॉर एग्जांपल someday you checked your bank account and you found an amount of 700,000 in your bank account, and there your father gave you a surprise that for last 12 years he is keep on depositing a regular amount of money in your bank account, right? Because he wanted to celebrate your 22nd birthday या 25th birthday या 30th birthday. So for last 12 years, your father keep on depositing an amount of money, and at the time of your birthday, you found your bank account showed a balance of almost 700,000. If your local bank pays an interest rate of 6.5% per annum, what amount of money your father kept on depositing in your bank account during those last 12 years? 12 साल तक आपके फादर वो क्या पैसे जमा कराते रहे हैं जो मिल के अब ये इतने पैसे बन गए? ठीक है। और इसी तरह से इस मॉडल की एप्लीकेशन उस सूरत में भी हो सकती है जब कंपनी ने ये प्लान करना होता है कि एक नई मशीन आ रही है जिसके ऊपर काम चल रहा है, और वो नई मशीन की लॉन्चिंग है 5 साल के बाद या 4 साल के बाद, एंड वी मस्ट बी द फर्स्ट वन टू बाय दैट मशीन, सो वी शुड सेव सम अमाउंट ऑफ मनी राइट नाउ इन अ बैंक अकाउंट, सो दैट कि वो पैसे 5 साल में या 4 साल में या 6 साल में हमारे पास इकट्ठे हो जाए। तो आज कंपनी को कितने पैसों की जरूरत होगी? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। ठीक है, बात समझ आ रही? इस मॉडल की एप्लीकेशन कई जगहों पे हो सकती है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये मॉडल लगना है, ये वाला फार्मूला लगना है? टाइमलाइन। द टाइमलाइन इज द ओनली मेथड यूजिंग विच यू कैन फाइंड इट आउट। ठीक है, क्लियर हो गया? सो नाउ लेट मी राइट दीज 3 मॉडल्स फॉर यू बिफोर आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। So far we have studied 3 formulas. Number 1, you must repeat with me. Future value at time n equals to present value at time 0 into 1 plus interest raised to the power n. Number 2, present value times 0 equals to the future value into 1 divided by 1 plus interest raised to the power n.
Third, future value of annuity. Future value of annuity at time n is equal to the recurring value divided by the interest rate into 1 plus interest rate raised to the power n minus 1. Okay? So this is future value of single amount of cash. Future value of a single amount of cash. Right? Single amount of cash. This is present value of a single amount of cash. This one is the future value of an annuity. What is an annuity? If somebody asks you to define an annuity, so annuity is a series of cash flows which fulfills three conditions. Number one, the cash must be same for each year. The cash amount must occur at the end of each year, and the time must be finite. It should not be infinite time. Time must be finite. Okay? So if these three conditions are fulfilled, you can use this formula. But if any of these conditions are not fulfilled, you cannot use this formula. ठीक है? अगर कैश फ्लो सेम नहीं है, कैश फ्लो एंड पे नहीं आती है, सेम है लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं आती, बिगिनिंग ऑफ द ईयर आती है तब भी, और अगर टाइम लिमिट जो है वो फाइनाइट टाइम नहीं है, इनफिनिट टाइम है, तब भी ये फार्मूला नहीं लग सकता. ये तीनों कंडीशंस पूरी होंगी तो ये फार्मूला लगेगा. ठीक हो गया? So in the same tone, let me change the. So I'm left with only 1 minute in this session. Okay. So now I'm talking about another type of model. So far we have studied future value of an annuity, but there could be a case when, let's say, I have deposited some amount of money in the beginning, right? So this is first year, second year, third year, fourth year, fifth year, and sixth year. I have deposited at time 0 an amount of money equals to, let's say 432,000, right? This much rupees I have deposited. मैंने lump sum जमा कराई है बैंक में. ठीक है, मैंने बैंक में एक lump sum amount जमा करा दी. Okay, and now I am withdrawing that from my bank account every year. मैं इस बैंक में से हर साल ये रकम निकलवाता रहता हूँ. कोई एक रकम, फिक्स रकम होगी लेकिन निकलवाता रहूंगा. जैसे पेंशन फंड होता है, आप हर साल तनख्वाह लेते रहते हैं या पेंशन लेते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इनिशियल में कुछ पैसे जमा करवा दिए. So the question is, if my local bank pays an interest rate equals to, let's say something, कोई भी ले लो आप, 5% ले लो, 5.5% ले लो, 6.5% ले लो, whatever you want to decide. It's 0.05. So 0.05 actually means 5%. ठीक है? Okay, now am I clear in this? ठीक है, मसला समझ आ रहा है आपको? मैंने कुछ रकम है जो जमा करवा दी थी बैंक अकाउंट में, ठीक है, और अब मैं हर साल एक रकम विड्रॉ करना चाहता हूं फॉर 6 years. तो वो कितनी रकम है जो मैं इस बैंक अकाउंट में से जब विड्रॉ करूं और आखिरी जब मैं ये 6ठे साल की रकम विड्रॉ करूं तो मेरा अकाउंट 0 हो जाए. नथिंग वुड बी लेफ्ट इन दिस अकाउंट. लेट मी चेंज दिस एग्जांपल फॉर यू. इसको हम एक और तरह से इस एग्जांपल को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा. लेट्स चेंज द एग्जांपल. राइट नाउ लेट मी से इट कि आई वांट टू विड्रॉ एन अमाउंट ऑफ मनी. लेट मी चेंज द एग्जांपल पैरेलल टू दिस. मैं चाहता हूं आने वाले 8 साल, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, right? For example, at the time of the death, my grandfather wanted that his grandsons or his son may withdraw an amount of 12,000 every year from the bank account. ठीक है?
कोई भी बंदा था, वो मरते वक्त उसने क्या किया, उसकी ख्वाहिश थी कि मेरे मरने के 8 साल बाद तक मेरी औलाद जो है वो बैंक में से उनको 12,000 रुपये सालाना मिलता रहे। यू कैन एज्यूम एनी अदर फिगर, आप कोई और डिजिट एज्यूम कर सकते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे ले लूं, ठीक है। तो ही वांटेड कि 8 साल तक लोग, जो मेरी औलाद है, वो बैंक अकाउंट में से 12,000 उसको मिलता रहे टिल 8 ईयर। 8 ईयर के बाद ये अकाउंट बंद हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा। सो हाउ मच दैट इनिशियल अमाउंट needed to be deposited in the bank account if bank pays an interest rate of 7.5% per annum, which is basically equals to 0.075. ठीक है, एम आई क्लियर? आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. ठीक है, Yeah. नाउ यू सी वी आर नॉट कंसर्न विद द लम सम अमाउंट एट द एंड। अभी जो आपने पिछली एग्जांपल की थी, इसमें लम सम अमाउंट आ रही थी एट द एंड, तो हम बोल रहे थे इसको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनविटी। तो पहले तो डिसाइड ये करें कि ये जो मैंने अभी एग्जांपल बनाई है, ये एनविटी बनती है। तो एनविटी की 3 शराइत होती है ना, वो 3 शराइत यहाँ पूरी हो रही हैं, आपने देखना है। कैश फ्लो मस्ट बी द सेम फॉर एवरी ईयर, सो कैश फ्लो इज सेम फॉर एवरी ईयर, राइट। कैश फ्लो मस्ट अकर एट द एंड ऑफ द ईयर, तो यहां भी ये कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द ईयर है, यहां भी एंड है, यहां भी एंड है, यहां भी एंड है, इन दोनों एग्जांपल्स में एंड ऑफ द ईयर। एंड टाइम पीरियड मस्ट बी फाइनाइट, इन दोनों एग्जांपल्स में टाइम पीरियड जो है वो फाइनाइट है, इनफिनिट टाइम नहीं है। तो क्लियरली दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ एनविटी, दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ एनविटी, क्योंकि एनविटी की कंडीशंस ये फुलफिल करती हैं। बट यहां पे वो जो लम सम अमाउंट है ना, वो हम एट द एंड ऑफ द ईयर की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो जब एंड ऑफ द ईयर था तो हमने कहा था वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी है। हियर हम क्या कहेंगे, व्हाट वी शैल कॉल दिस लम सम अमाउंट टू बी, this is present value of NVT, right? This is present value of NVT. याद रखिए, एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन क्या होती है, वो यही होती है कि ये सवाल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी का है या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी का है। कैसे पता चलेगा आपको? आपको पता चलेगा डायग्राम से। आप जब ये फिगर बनाएंगे और आप देखेंगे वो लम सम अमाउंट इन द बिगिनिंग की बात हो रही है या लम सम अमाउंट एट द एंड की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर एट द एंड की बात हो रही होगी तो यू विल कॉल इट अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी। अगर वो लम सम अमाउंट इन द बिगिनिंग की बात हो रही होगी तो वो ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी, सो वी कॉल इट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी एट टाइम 0, ठीक है। तो हियर कम्स अवर फोर्थ फार्मूला। सो अवर फोर्थ फार्मूला इज present value of NVT at time 0, and that is equal to the recurring amount, which is 12,000 in this example and unknown in this example. इस एग्जाम्पल में आपने मालूम करनी है, इस एग्जाम्पल में 12,000 है। So divided by the rate of interest into 1 minus 1 by 1 plus rate of interest to the power n. That's what our fourth model is. This is known as present value of NVT formula. ठीक है जी, is it clear? Yes, sir. You need to remember this fourth formula as well. और आप ये समझ लो कि अब जितनी फाइनेंस आप मुस्तकबिल में पढ़ने जा रहे हैं उसमें यही 4 फार्मूले हैं बस, पूरे कोर्स में, ठीक है। बेस लाइन यही होगी। एग्जाम्पल को देखते हुए इस फार्मूले के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करनी पड़ा करेगी आपको, बस। सो यू नीड टू मास्टर दीज 4 फार्मूलाज, और ये कोई बड़ा काम नहीं है पूरे फुल सेमेस्टर के कोर्स के लिए। बात समझ आ रही है? आगे किताब आप खोलेंगे ना, बड़े फार्मूले आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो कोई नया फार्मूला नहीं होगा, वो यही फार्मूले के अल्फाबेट्स को चेंज करके बना हुआ होगा। यू नीड टू मास्टर दीज 4। तो मैं ये समझता हूँ कि यार ये एक पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझने के लिए ये इन 4 फार्मूलों का रट्टा भी लगाना पड़े या जो भी करना पड़े, कोई बड़ी डील नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द फार्मूलाज वुड बी बेस्ड ऑन दीज 4 फार्मूलाज। इन्हीं की चीजों को कम करके या इसी के मॉडल को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके हम चीजों को बनाना शुरू कर देंगे। सो दिस इज नाउ योर 4th फार्मूला, and we can solve it present value of NVT problem using this
fourth formula, right? So this is your fourth formula. ठीक है, और आपने ये देखा कि हमने कितने पढ़ लिए, ये आ गया था फर्स्ट फार्मूला, ठीक है, उसके बाद यहां आ गया था सेकंड फार्मूला, फिर आ गया था जनाब ये थर्ड फार्मूला, और ये आ गया जनाब आपका फोर्थ फार्मूला, ठीक है। अब नाउ वी नीड टू पुट द अमाउंट इन इट, सो लेट्स सॉल्व दिस सेकंड प्रॉब्लम फर्स्ट। ये वाला सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। 12,000 और 7.5%, 12,000 7.5% 8 सालों के लिए, याद रखिएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। So let me solve it for you. So I've just taken arbitrary figures. So इनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम किताब का भी सॉल्व कर लेंगे, नो इशू इन दैट। सो लेट मी राइट इट अगेन। सो प्रेजेंट वैल्यू of an annuity at time 0 is equal to recurring value divided by the interest into mistake. Okay, so this is 1 minus 1 divided by 1 plus rate of discount. We call it rate of discount in case of present value. Okay, let me put the values, and I'm solving this second one first. I'm solving this second one where R is, in this example R is 12,000, right? I is 0.075 and N is 8. ठीक है, ये values मैं उधर put कर रहा हूँ. So now if I solve it, I will say R is 12,000 divided by interest rate is 0.075, 7.5% लिया था हमने, into 1 minus 1 divided by 1 plus interest is 7.5%, that is 0.075, raised to the power how many years? 8 सालों के लिए हमने किया था ये, ठीक है। So I'm solving the second problem first. So let me solve it. 12,000 divided by 0.07, 12,000 divided by 0.075 is equal to how much, G? That is 160,000. This is 160,000. Okay, and then 1 minus 1 divided by 1 plus 0.075 to the power 8. So I'll take 1.075 to the power 8. Okay, so that would become equals to 1 divided by 1.78347, and let me solve it further. मैं अभी एक स्टेप कर रहा हूँ, बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम एक ही दफा में कर लिया करेंगे इसको. So that is 1 divided by the answer is equal to 0.56070, and it's 160,000 multiplied by 1 minus this amount is 0.4399, and multiply by 160,000 is equal to 70,287.642. This is your answer. ठीक है, 70,287. क्या कहा था हमने कहा था यहाँ कितने पैसे जमा करवाऊं कि हर साल 12,000 निकलते रहें और 8 साल तक निकलते रहें. I just need to deposit how much? 70,287.64. आप 70,228 रुपए आज जमा करा दें बैंक में. अगर बैंक 7.5% इंटरेस्ट रेट पे करता रहा 8 सालों तक, तो आप हर साल 12,000 निकलवा सकते हैं. You understand that? Yes, sir. ठीक है ना, ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. अभी मैं आपको इसकी एक और एप्लीकेशन बताता हूँ, आपको मजा आएगा. किस्तें बन जाती हैं इससे, ठीक है. मैं बताता हूँ अभी आपको, किस्तों का कारोबार हो जाएगा पूरा इससे. So these are very interesting and applied models. आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये लगाने का मौका मिल जाएगा. कहीं पे भी आप जाएंगे ना, यानी ऐसी जगह पे जहाँ पे लग रहा होगा ऑब्वियसली, चीनी लेते जाते हो या दही लेते जाते हो तो नहीं लगेगा ये, राइट. सो लेट मी शो यू. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस वन अगेन. ये भी सॉल्व करते हैं.
कि आपने 4,232 जमा कराए थे बैंक अकाउंट में, अब हर साल आप एक रकम निकलवाना चाहते हैं, वो रकम क्या होगी? अगर बैंक 5% इंटरेस्ट देता है तो इस प्रॉब्लम में योर आर इज अननोन, योर आर इज अननोन, यहां पे था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी अननोन, ठीक है, यहां पे आर अननोन है, बट यू नो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी, दैट इज इक्वल टू 432,000, n इज इक्वल टू 6 एंड i इज इक्वल टू 0.05। मैं ये चार बातें लेता हूं, और ये क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी का क्वेश्चन है, तो लिहाजा मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ओके, सो रिमेंबर this is 402,006 and 5%. Okay, let me solve it for you. So here is again 16,000. Okay, let me write the formula again. So this is present value of NVT at time 0 is equal to R divided by I into 1 minus 1 divided by 1 plus rate of discount to the power N. Now here my present value is 432,000. My R is unknown. I don't know the R. My rate of interest was कितना था जी? 5%. Here in the, मैं ये example solve कर रहा हूँ. Okay, so 5% is my rate of interest and 6 is my time period. So my time period is 6 and my interest rate is 5%. Okay. So this is R and this is 0.05 into 1 minus 1 divided by 1 plus 0.05 to the power how many years? 6 years. Now let me solve it for you. अब मैं क्या करूंगा? I can multiply this 0.05 over here. So 432,000 multiplied by 0.05. 432,000 multiplied by 0.05. This equals to 21,600. So please do the calculation side by side. आप खुद भी ये calculations करते रहें. R into 1 minus 1 divided by, so this is 1.05 to the power 6. 1.05 to the power 6 is equal to 1.34009. And this is equal to 21,600 R into 1 minus, now this is 1 divided by this value is 0.74621. Okay, now again 21,600 into R multiplied by 1 minus this answer is 0.25378. And now I can divide, this is ये multiply हो रहा है यहाँ पे, I can divide it over here, right? So this is 21,600 divided by 0.2537 is equal to R. So my R basically equals to 21,600 divided by this value is, this is 85,111.546. This is my answer. So if somebody deposits 432,000 in the beginning, and the bank account keeps on paying 5% interest for 6 years, I can withdraw 85,111.54 every year at the end of the 6th years. Okay? So this is my next example. This is my example. This is also an example I mentioned previously. This is also an example. You get my point or not? Do you understand that? Any question till this point? If you have any question. No, sir. Question ये है कि you bought a motorbike worth रुपीस कितने की आ जाती है? 60,000 की आ जाती है ना, 60,000, राइट, ऑन इंस्टॉलमेंट्स.
ठीक है। द वेंडर सेलर जो भी होगा ना, द वेंडर एग्रीज टू मेक इंस्टॉलमेंट या फाइव एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, 5 annual installments of equal amount of money, equal amount of money। ठीक है, वो 60,000 की 5 बराबर किस्तें बना रहा है सालाना, और बराबर बराबर रकम होगी जो आपने जमा करानी होगी। इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, इंस्टॉलमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। इफ द वेंडर is charging 7% per annum interest, how much the amount of installment should be? अगर 7% सालाना इंटरेस्ट हो तो आप बताएं वो बराबर की इंस्टॉलमेंट कितनी रकम की होगी? 5 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है 60,000। 60,000 की बाइक है, 5 साल की टाइमलाइन बनानी है। सो आई एम मेकिंग अ 5 years टाइमलाइन ओवर हियर। दिस इज माय फर्स्ट ईयर, दिस इज माय सेकंड ईयर, दिस इज माय थर्ड ईयर, दिस इज माय फोर्थ ईयर एंड दिस इज माय फिफ्थ ईयर। 5 साल। 60,000 की बाइक मैं आज ले रहा हूं। 60,000 की बाइक मैंने आज खरीदी है। ये 60,000 मालियत उसकी आज बनती है टाइम जीरो पे। दिस इज द टाइम जब मैं बाइक खरीद रहा हूं। 5 इंस्टॉलमेंट्स बनानी है। अगर इंटरेस्ट रेट हो 7% यानी कि 0.07, तो ये बराबर की किस्त क्या कहलाएगी? आर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? दैट इज 0.07। उसके बाद आ गया जनाब 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.07 टू द पावर। कितने सालों में किसने बनानी है? 5 सालों में बनानी है। सो यू पुट 5 हियर, लेट्स सॉल्व इट। ये 0.07 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 60,000 multiplied by 0.07, that is equal to 4,200। कैलकुलेशंस प्लीज चेक करते रहिएगा। R multiply by 1 minus 1 divided by 1 plus 0.07, so this is 1.07 to the power 5 is equal to 1 divided by 1.40255। okay, now let me move forward। so अब ये बन जाएगा 4,200 is equal to R into 1 minus, if I have 1 divided by 1.40255 is equal to 0.71298। okay, so now 4,200 is equal to R 1 minus 0.07, so 1 minus this value is equal to 0.28701। now this means ये यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दैट इज 4,200 डिवाइडेड बाय 0.28701 is equal to R। so my R is equal to how much? 14,633.441। तो मुझे महाना किस्त और सालाना किस्त कितनी पड़ेगी? 14,633 रुपए। अगर मैं आज 5 सालों की किस्तें बनवा के 60,000 की मोटरसाइकिल ले लूं तो मुझे 5 साल तक 14,633 रुपए अदा करने पड़ेंगे। अब आप इसको यूज करके प्लाटों की किस्तें बना लें कि किस्तों पे प्लाट मिल रहा है। ठीक है, आप जनाब गाड़ी की किस्तें बना लें, आप मकान की किस्तें बना लें, कोई भी चीज बना लें आप। इंटरेस्टिंग। सर अभी याद रखें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ उसकी टूल किट पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम वो मैं बताऊंगा आपको भी, और भी आप इंजॉय करें। सो वी हैव स्टडीड द टाइम वैल्यू problems for
and annuity, right? In addition to single amount of cash. So far we have studied 4 models. Let me write them for you. Future value at time n is equal to present value at time 0 into 1 plus rate of interest rate raised to the power n. Our second formula is present value at time 0 is equal to future value at time n, 1 divided by 1 plus rate of discount, we call it rate of discount, to the power n. And third thing is future value of an annuity at time n is equal to the recurring value divided by the rate of interest into 1 plus rate of interest to the power n minus 1. And then we have present value of an annuity at time 0, that is equal to recurring value divided by rate of interest into 1 minus 1 divided by 1 plus interest to the power n. ठीक हो गया? So, any question till this point? Any question till this point? No, sir. अच्छा, अगर ऐसा हो कि हम एनवीटी की एक शर्त को चेंज कर दें, ठीक है, जैसे हम यहां पे बल्कि एक समरी में लिख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एनवीटी, राइट? प्रॉपर्टीज ऑफ एन एनवीटी. एनुअल से है ना ये वर्ड एनुअल से है, एन्युटी, राइट? एनुअल से है, सालाना कोई चीज, एन्युटी, राइट? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कैश अमाउंट इज सेम. अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, कैश अमाउंट इज सेम. कैश अमाउंट और कैश occurs at the end of year. Or time period is finite. Right? अब अगर मैं एक प्रॉपर्टी रिलैक्स कर दूं कि कैश अमाउंट सेम तो है बट डज नॉट अकर एट द एंड ऑफ द ईयर, इंस्टेड इट अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, राइट? अगर ये प्रॉपर्टी एंड ऑफ द ईयर की बजाय बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो जाएगा तो ये जो एनवीटी है ये एनवीटी ड्यू कहलाएगी. दिस वुड बी नोन एज एनवीटी ड्यू. ठीक है, यहां पे मैंने चेंज किया कि अगर एंड ऑफ द ईयर की बजाय बिगिनिंग ऑफ द ईयर आ जाए तो ये एनवीटी ड्यू कहलाएगी. ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा सिवाय एक चेंज के. वो बन जाएगा यहां पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी ड्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी ड्यू एट टाइम एन एट टाइम 0. ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर एक हम रिलैक्स कर दें तो फॉर्मूला वही रहेगा, r डिवाइडेड बाय i इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, एक्सेप्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक दफा और 1 प्लस आई से. सिमिलरली प्रेजेंट वैल्यू में भी ऐसे ही रहेगा, वही प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला रहेगा सारे का सारा, सिवाय एक चेंज के साथ कि हम इस फार्मूले के आखिर में 1 प्लस आई को मल्टीप्लाई करेंगे. दैट्स ऑल. सेशन एंड हो रहा है, प्लीज थोड़ी देर के लिए दोबारा ज्वाइन कीजिएगा. मैं इसकी डायग्राम का भी फर्क आपको बता देता हूं. ठीक है, एनवीटी ड्यू समझ आइए? यस सर. फार्मूला वही है, Yes, सिर्फ फार्मूले के आखिर में 1 प्लस आई एक दफा और आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा इसके साथ, और कुछ भी नहीं करना होगा.
ओके, वेलकम बैक। सो मैं क्विकली बस अब इसको विद इन 2 मिनट्स वाइंड अप कर रहा हूँ, सिर्फ आपको इन दोनों की डायग्राम का फर्क समझा के। ओके, सो होता ये है कि जब एनवीटी होती है ना, इन केस ऑफ एनवीटी, जो ये वाले दो केसेस थे, राइट, एनवीटी टाइमलाइन जो आप बनाते हैं ना, जैसे 5 इयर्स की आपने टाइमलाइन बनाई, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 0। एनवीटी के केस में वो जो रिकरिंग अमाउंट है ना, वो 5 साल है तो 5 अमाउंट ही आनी है, लेकिन आनी साल के एंड पे है। पहले साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे, तीसरे साल के एंड के, और चौथे साल के एंड पे, और 5वें साल के एंड पे। 5 अमाउंट्स है लेकिन एंड ऑफ द ईयर है। एनवीटी ड्यू में क्या होता है? एनवीटी ड्यू में ये होता है कि वही 5 साल होंगे, ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 0। 5 ही अमाउंट्स आनी है, लेकिन वो 5 अमाउंट साल के शुरू में आ जाएंगी। बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर है, ये 1 का मतलब है एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये पूरा 1 साल खत्म हुआ, 1 साल हो गया। दूसरा शुरू हुआ है ना, तो ये दूसरे साल की कैश, ये तीसरे साल की है, ये चौथे साल की है, और ये 5वें साल की है। अभी भी 5 अमाउंट्स ही आई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन हर साल की शुरू में आई है। 5वें साल की अमाउंट ये है, ये 5th ईयर अमाउंट है, ये 4th ईयर अमाउंट है, ठीक है, ये 3rd ईयर है, ये 2nd ईयर की है, ये 1st ईयर की है। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे एंड ऑफ द ईयर पे आ रही है। ये 1st ईयर की अमाउंट है, ये 2nd ईयर की अमाउंट है, ये 3rd की है, ये 4th की है, ये 5th की है। यहाँ पे भी 5 अमाउंट है, लेकिन साल के शुरू में आ जाती हैं। अगर साल के शुरू में आ जाएंगी तो अभी भी ये एन्युटी ही है, लेकिन क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक एजम्पशन हमारी यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है, उसकी जगह बिगिनिंग हो रहा है, तो हम इसी को क्या बोलेंगे? एन्युटी ड्यू। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या बनती है यहां पे, तो ये कहलाएगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, और आप ये वाला फार्मूला लगा रहे होंगे, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि यहां बताएं इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बन रही है, सॉरी यहां पे, सॉरी इधर इधर, अगर मैं आपसे कहूंगा जी इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बन रही है, तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। बात समझ आइए? इज इट क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं है? सर तो अब ये कितने मॉडल्स हो गए? 4 जमा 2 और 6। अब आपने देखा ये कोई नई बात नहीं है, ये दो फार्मूले कोई नए फार्मूले नहीं है, उन्हीं को थोड़ा सा हमने अमेंड कर दिया। बस ये छोटी मोटी अमेंडमेंट चलती रहेंगी इनके अंदर, बातें यही 4 हैं। ओके, सो अब एक बार फिर इन सबको 6 के 6 को दोबारा लिखते हैं। चलें, आखिरी बात, और उसके बाद आपको अस्सलाम वालेकुम। मैं अटेंडेंस लगाऊंगा, उसके बाद वेट कीजिएगा प्लीज। सो 16 मार्च 2020। नाउ अब मैं लिख देता हूं इसको टूल किट। दिस इज माई टूल किट। टूल किट, रिपीट विद मी। फ्यूचर वैल्यू of a single amount is equal to present value multiplied by 1 plus interest to the power n. Present value at time 0 for a single amount is equal to future value at time n into 1 divided by 1 plus rate of discount to the power n. Future value of a series of cash flow, which is an annuity at time n, is equal to r divided by rate of interest into 1 plus interest to the power n minus 1. Fourth, present value of an annuity at time 0 is equal to r divided by rate of discount into 1 minus 1 divided by 1 plus rate of discount to the power n. If the amount occurs at the beginning of the year, my fifth model is future value of annuity due at time n is equal to r divided by rate of interest into 1 plus interest to the power n minus 1 into 1 plus interest. Sixth, my present value of annuity due at time 0 is equal to r divided by rate of discount into 1 divided by 1 minus 1 divided by 1 plus rate of discount to the power n into 1 plus interest. ठीक हो गया?
This is the case of a single amount. Okay, so you have a single amount to find out here. Here is the case of finding out a single amount of present value. Here is the case of finding the future value of a series of cash when cash occurs at the end. Here is finding the present value of a series of cash flow when cash occurs at the end. Here is finding out the future value of a series of cash flow when cash flow occurs in the beginning. 1, 2, 3, 4. Here is the problem of finding the present value of a series of cash flows when cash flow occurs in the beginning. 1, 2, 3, 4. Fair enough?